मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। And in which we have discussed basically periodic properties and its variation. So कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था one of the important periodic property, that is electron gain enthalpy. Today we'll discuss its importance कि on the basis of the values of variation in the electron gain enthalpy, which parameter we can determine, which other properties of elements which we can determine with the help of electron gain enthalpy. So importance of electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy or electron affinity? The tendency, electron gain enthalpy is what? Change in energy when one electron is added into the isolated gaseous atom and make it anion. So that is that enthalpy change, that energy change is called electron gain enthalpy. And electron affinity is tendency of element to accept the electron easily. That means that element has a high value of electron affinity. As high value of electron affinity means its electron gain enthalpy is more negative. मतलब जो easily electron accept करेगा उसकी electron affinity high होगी, उसकी electron gain enthalpy more negative होगी. So the element which high value of electron gain enthalpy has a strong tendency, or it can easily accept the electron and form the anion. So such kind of elements are electronegative elements. Such kind of elements are known as electronegative element, and such kind of elements easily form the ionic compounds. क्या form करेंगे? Easily form the ionic compounds. तो पहला पॉइंट क्या हुआ? On the basis of electron gain enthalpy, you determine whether the element is electronegative or not. High electronegative, यदि element easily electron accept कर रहा है, an element accept electron easily means it has high negative value of electron gain enthalpy, so that element is electronegative, and it has a tendency to form ionic compound. Tendency to form ionic compound. Is it clear? Yes, sir. Second, those elements which has high negative value of electron gain enthalpy are powerful oxidizing agent. जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हाईली नेगेटिव होती है. हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एलिमेंट which have high negative value of
electron gain enthalpy are powerful oxidizing agent. They are powerful oxidizing agent. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, these are the elements which have high value of electron gain enthalpy, high negative value of electron gain enthalpy, and they are considered as a powerful oxidizing agent. इनको हम क्या बोलते हैं? Powerful oxidizing agent. Now, on the basis of value of electron gain enthalpy and ionization enthalpy, we can determine some different properties of element like its metallic and non-metallic character. देखिए एलिमेंट का मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो दो पैरामीटर्स, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब दोज एलिमेंट व्हिच हैज लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म द कैटायन. सो दोज एलिमेंट्स आर मेटालिक, हाईली मेटालिक इन नेचर. मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो मेटल होंगे और उन मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहेगी. सो लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी मेक्स द एलिमेंट मेटालिक, एंड दोज एलिमेंट व्हिच हैज टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी easily accept the electron and form the anion, they have high value of electron gain enthalpy, so they will form anion, and such kind of elements are known as non-metals. मतलब जिन एलिमेंट्स की elements which have low value of ionization enthalpy, more tendency to lose electron and form cation. So those elements are metallic in nature. क्या होंगे? मेटालिक नेचर के रहेंगे. एंड एलिमेंट्स which have high negative value of electron gain enthalpy more tendency to gain the electron and form anion. वो क्या फॉर्म करेंगे? एनायन फॉर्म करेंगे. क्या फॉर्म करेंगे? एनायन फॉर्म करेंगे. सो दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर. अब हमने जनरल ट्रेंड क्या देखा था? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ऑल्सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव. आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर नेगेटिव हो रही है, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. एंड एज वी मूव टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप, क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस and electron gain enthalpy value becomes more positive. So ionization enthalpy decreases, so that means metallic character increases. Metallic character increases, non-metallic character decreases. So as we move left to right, बात करें मेटालिक कैरेक्टर की, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीजेस. नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या रहेगा?
as we move left to right across the period, metallic character increases and top to bottom it will be decreases. Is it clear? Yes, sir. ठीक है ना. सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. सो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल क्या होगा? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट across the period, stability of metal increases, but the activity of metal decreases. स्टेबिलिटी ऑफ मेटल की बात करें और दूसरा हमारा है एक्टिविटी ऑफ मेटल. एक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी. स्टेबिलिटी और एक्टिविटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस. सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल होगा एक्टिविटी. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, activity of metal decreases and top to bottom it will be increases. metallic character और activity एक ही है. metallic character बढ़ रहा है मतलब उसकी metal की तरह react करने की जो activity है वो बढ़ रही है. तो left to right जाने पर metallic character decrease होता है, इसलिए stability of metal increase होती है और उसकी reactivity decrease होती है. ठीक है. फिर आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड. एक और प्रॉपर्टी है जो इसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है. जैसा कि हमने बोला कि when metals react with oxygen they form metallic oxide which are basic in nature and non metallic oxides are acidic in nature. so left to right जाने पर metallic character decrease हो रहा है और non metallic character increase हो रहा है. तो ऑक्साइड्स जो रहेंगे वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रहेंगे. तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे रहते हैं? एसिडिक नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे रहते हैं? एसिडिक नेचर के. ठीक है. तो हमारा बात करें बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा. और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा. जबकि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होगा. Is it clear? Yes, sir. मैत्री बेटा समझ में आया? Now we'll discuss next physical periodic property and that is electronegativity. Electronegativity. So now what is electronegativity?
बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। मतलब जो एटम एक दूसरे के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड है, उन बॉन्डेड एटम्स की क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो उन बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इट इज इक्वल टू रिलेटिव टेंडेंसी। बेसिकली क्या है? इट इज जस्ट अ टेंडेंसी। So it is equal to relative tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी क्या बोली जाती है? दैट रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे देखिए, सपोज दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जैसे एक एटम है ए और एक एटम है बी, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो क्या कर रहा है? ये एटम बी जो है इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट both the electron pair towards itself, and it becomes partially acquire a partial negative charge, and ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो it will partially tendency to acquire a partial positive charge। so इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूल का कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको क्लियर आउट कर रहा हूं। जैसे इफ आई एम टेकिंग H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन नियर बाय दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। तो ये H क्या बन गया? आपका H2 मॉलिक्यूल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल होगी, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हुआ तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर होगा। क्या होगा? इक्वली शेयर होगा। लेकिन इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ HCl मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ये इसको इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ शेयर करेगा, ये बन गया HCl बॉन्ड। अब क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। अब क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी है। एज इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल थे, लेकिन ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, जबकि ये क्या हो गया? पोलर। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यदि दो एटम्स आइडेंटिकल है और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ जीरो है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है,
तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कैसा कैरेक्टर आ जाएगा, पोलर कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आया समझ में? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाउ अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है कि इज दिस सिमिलर विद द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जैसा ही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या बोलते हैं, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो वहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, बट यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, बट दोनों एक दूसरे से डिफर है। दोनों पैरामीटर्स, दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंस रखती है। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है पहले वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? सो फर्स्ट विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। इंडिविजुअल एक ही एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एटम जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है उसकी प्रॉपर्टी। इट इज एनर्जी चेंज। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक एनर्जी चेंज है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है या एक्सेप्ट करने के लिए आपने कितना एनर्जी सप्लाई किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज एनर्जी चेंज। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है? क्योंकि इट इज ओनली रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एटम, एक एबिलिटी है। इट इज नॉट अ फिजिकल यूनिट, कोई भी इसकी ऐसा यूनिट नहीं है। इट इज ओनली अ प्योर नंबर, नो ऐसा यूनिट, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। इट इज अ सिंपल अ प्योर नंबर। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एक प्योर नंबर होता है, ठीक है? और तीसरा डिफरेंस आप इनकी डेफिनेशन का लिख सकते हैं कि इट इज एनर्जी चेंज when an electron is added into isolated gaseous atom and it is tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. इसमें प्योरली वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। जबकि इट विल एक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से। इज इट क्लियर?
So that is an important difference between electron gain enthalpy and electronegativity.